नमस्कार, G18 में आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यूपी से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से स्मृति ईरानी का नामांकन से पहले आवास पर की पूजा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी, तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी जो है वो आज यानी कि 29 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेगी। अपना नामांकन करने से पहले वो अपने घर पे पूजा की है। स्मृति ईरानी के आवास पर आज विशेष पूजा चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन दाखिल करेगी। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले अपने घर पे विशेष पूजा की गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जिसमें चुनाव में जिक्र पर भड़का पाकिस्तान। राजनीतिक फायदे के लिए हमारा नाम न ले, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने जताई आपत्ति। भारतीय दावे ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के विपरीत है, ऐसा पाकिस्तान ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसमें चुनाव के जिक्र पर पाकिस्तान है वो भड़क उठा है। राजनीतिक फायदे के लिए हमारा नाम ना ले, ऐसा पाकिस्तान ने कहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। भारतीय दावे ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के विपरीत है, ऐसा भी पाकिस्तान ने कहा है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में हादसा हुआ है। हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होने से एसआई की मौत हो गई है। हादसे के सीसीटीवी है वो भी सामने आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में टनल हादसा हुआ है। हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होने से एसआई की मौत हो गई। हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। तो खबरों में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए G18 के साथ। As citizens and Indians, we are citizens of the world's largest democracy, which our country is. The Constitution gives us a multitude of rights as citizens, but it also expects that each of us performs the duty which is cast upon us. And one of the foremost duties of citizenship is to cast our vote. In a constitutional democracy, the government is a government of the people, by the people, and for the people. And we call it that because of the fact that each of us has a participatory role in electing the government. When I was young and I crossed the age of eligibility to vote, I remember the excitement in my heart that for the first time I would be queuing up at the polling booth and exercising my franchise. Getting that dot on the finger when I voted aroused tremendous feelings of patriotism and association with the nation and me. Sometimes when you have an ink mark on your hand, you're wondering when that ink mark will go away. But this is one ink mark which I never wanted to go away, because I felt that I was a proud demonstrator of the fact that as an Indian citizen, having crossed the age of eligibility, I could exercise my vote, and I had in fact exercised my vote. So the day of election has always aroused wonderful feelings. The feeling that though I may be one in this big line of people who have come to vote, each of us counts as the same citizen with the same value. So our Constitution and our law provides for one citizen, one vote, and one value. I think that's the great
tenacity and the power of our nation as a constitutional democracy. When I became a lawyer and I had to run around in search of work in different places, both in Mumbai and outside, I was always worried that I should not be missing that one important day when I have to cast my vote. And I never missed that duty and obligation which is cast on me as an Indian citizen. So likewise, I would request every one of you, please do not miss this opportunity to vote responsibly as citizens of our great motherland. 5 minutes every 5 years for our nation. It's doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice. I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे. The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. विराम बाद फिर से एक बार आपका G18 में स्वागत है. नजर करते हैं आगे की खबरों पर. तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कोलकाता से. कोलकाता के गोदाम में आग लगी है. कोलकाता के गोदाम में भीषण आग लगी है. आग लगने से लाखों का सामान जो है वो जलकर राख हो गया है. दमकल विभाग की 10 गाड़ियां आग को बुझाने में लगी है. आग लगने की वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है. तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो कोलकाता से सामने आ रही है. कोलकाता के गोदाम में भीषण आग लगी हुई है. आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है. दमकल विभाग की 10 गाड़ियां आ गई है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है. आग लगने की जो वजह है वो अभी तक पता नहीं चल पाई है. एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है. लखनऊ में आज राजनाथ सिंह अपना नामांकन करेंगे. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रोड शो करेंगे. वरिष्ठ नेताओं के साथ रथ पर निकलेंगे राजनाथ सिंह. सीएम योगी और सीएम दामी जो है वो मौजूद रहेंगे. लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन से पहले उन्होंने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा की. उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और हनुमान मंदिर में दर्शन किए. तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो लखनऊ से सामने आ रही है, जिसमें लखनऊ से आज राजनाथ सिंह है वो नामांकन करेंगे. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रोड शो भी करेंगे. वरिष्ठ नेताओं के साथ रथ पर राजनाथ सिंह निकलेंगे. सीएम योगी और सीएम दामी उस वक्त मौजूद रहेंगे. लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन से पहले उन्होंने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा की. उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और हनुमान मंदिर में दर्शन किए. एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें भीमताल में बेस कैंप के पास आग जो थी वो नियंत्रित हो गई है. 1780 एकड़ का भीमताल का जंगल है. एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर काबू पा लिया गया है. MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है. भीमताल के जंगल में आग लगी थी. फिलहाल भीमताल में बेस कैंप के पास लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है. 1780 एकड़ का भीमताल का जंगल है. एयरफोर्स बेस कैंप के पास आग लगी थी जिस पर काबू पा लिया गया है. MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाया गया है.
तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।